Welcome, friends. In today's session of the subject called Business Regulatory Framework, we are currently dealing with Unit 3, Indian Contract Act 1872, Special Contracts. And the chapter which we are focusing on is agency. Let's have today's question on the screen. What we are going to discuss today is under what circumstances the contract of agency gets terminated, or how we can say how the agency, under what situations or cases the agency contract is lapsed or revoked, how the agency contract ends. That is what we are going to discuss. What are the ways, what are the means, what are the modes under which they can be agency contract can be terminated. So let's have its idea. Termination of agency. The lawful provisions relating to the termination of agency are mentioned in the sections from starting from 201 to 210 of the Indian Contract Act. The agency may be terminated or revoked in any of the following ways. So lawful provisions are framed starting from section 202 to 210. So at least at almost 10 sections are there based on the termination of agencies, under which the provisions, the rules are framed, and accordingly the agency can be terminated, it can be end. So let's have its idea. The first one is, the first way is by the act of the parties, while the other is by operation of law. These are the two ways, exact two ways through which we can say the agency contract is terminated or it is revoked, either by the act of the parties or it may be by the operation of law. First, we will try to cover the first section, that is by the act of the parties, in which there are three ways, three means. We are going to cover first these three means by the act of the parties. That is number one, by agreement, that is mutual agreement. Number two is revocation either by principal, or number three is revocation by the agent. So let's have its idea now, one by one. By agreement, by the act of the parties, under that number one is by agreement. So let us try to understand agreement in the sense what, sir? Mutual agreement. सर दो बंदे मिलके अगर एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, तो दो बंदे मिलके एजेंसी को अगर टर्मिनेट करना हो तो इजीली टर्मिनेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. By mutual agreement between the principal and the agent, like any other agreement, the agency may be terminated at any stage and at any time. जब चाहो तब एजेंसी अगर आपने क्लोज करनी है, इसका अंत लाना है, तो आप कभी भी ला सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट, यानी दोनों तैयार होने चाहिए, ऐसी बात यहाँ की जा रही है. तो बंदे म्यूचुअली रेडी हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एजेंसी स्टार्ट करने के लिए, वही म्यूचुअली डिसाइड करेंगे क्या हमें इस एजेंसी को कंटिन्यू रखना है या हमें अब इसे बंद कर देना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सिचुएशन ऐसी हो जाए और फिर वहां पे ऐसा लगे कि अब एजेंसी का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, हम उसको रिवोक कर देते हैं, इसका अंत लाते हैं, दोनों सम्मत हो तो ये पॉसिबल है. So at any stage, at any time, it can be terminated by mutual agreement. सेकेंड सिचुएशन पे चलते हैं. फर्स्ट मेथड की सेकेंड सिचुएशन में आ रहे हैं, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल. प्रिंसिपल रिवोक कर देता है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को. पहले म्यूचुअली ये दोनों साथ में मान के एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का अंत ला रहे हैं, म्यूचुअली दोनों का कंसेंट लेके दोनों एग्री होते हैं कि चलिए एजेंसी बंद करते हैं. अब यहाँ जो है सिंगल पार्टी की बात आ रही है. दूसरे सिचुएशन में है रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, और तीसरी सिचुएशन में आएगा रिवोकेशन बाय एजेंट, यानी अब सिंगल सिंगल पार्टी की बात हो रही है. यहाँ से प्रिंसिपल सोच रहा है कि एजेंसी का अंत कर दिया जाए, लेट मी टर्मिनेट द एजेंसी. मालिक सोच रहा है कि एजेंसी बंद कर देनी है. तो इसके रूल्स क्या है वो समझना है. रिवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल ये कैसे हो सकता है? तो देर आर different rules relating to the revocation of agent's authority by principal. तो एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक करके एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट करने की बात हो रही है. तो इसमें सिचुएशन से वो वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे.
प्रिंसिपल हैज अथॉरिटी टू टर्मिनेट द एजेंसी बाय रिवोकिंग एजेंट्स अथॉरिटी। जो अधिकार दिया गया है एजेंट को वो आप टर्मिनेट कर दीजिए, रिवोक कर दीजिए मीन्स विड्रॉ कर लीजिए। जैसे आपने एजेंट की अथॉरिटी विड्रॉ कर ली है सर, तो क्या हो जाएगा सर, एजेंसी गेट्स टर्मिनेटेड सर। ये पहली सिचुएशन है एज पर सेक्शन 201। जो अथॉरिटी आपने एजेंट को दी है आप विड्रॉ कर लीजिए बस। सो दैट अथॉरिटी इज विद प्रिंसिपल टू टर्मिनेट द एजेंसी बाय रिवोकिंग एजेंट्स अथॉरिटी, यानी एजेंट को जो सत्ता दी गई है वो आप विड्रॉ कर लीजिए, वापिस खींच लीजिए। जैसे ही आपने ये किया, आप क्या कर रहे हैं सर, एज अ प्रिंसिपल यू आर ट्राइंग टू टर्मिनेटिंग द एजेंसी, एजेंसी का अंत लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 201 था, ये सेक्शन 203 आ रहा है। The principal may revoke the authority of his agent at any time before the authority has been exercised. जब चाहे तब, इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि हम इसी डेट को रिवोकेशन कर सकते हैं या 1 महीने बाद रिवोकेशन कर सकते हैं या 2 साल बाद, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। प्रिंसिपल को लगता है कि एजेंसी अब बंद करने का समय आ गया है, ये एजेंसी को अब आगे कंटिन्यू करने जैसा नहीं है या इस एजेंट को आगे कंटिन्यू करने जैसा नहीं है, तो डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल, ही मे रिवोक द अथॉरिटी ऑफ हिज एजेंट एट एनी टाइम। अगर उसने अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं की है, अपनी अथॉरिटी का बिल्कुल उपयोग नहीं किया है, उसके उपयोग करने से पहले भी अगर वो अंत लाना चाहता है तो हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है। उसके बाद द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी आफ्टर इट हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज। सो प्रिंसिपल कैन रिवोक हिज अथॉरिटी ओनली फॉर फ्यूचर। अब कोई कार्य शुरू हो गया है तो जब तक वो कार्य कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसकी अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकते। वो कार्य समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए, देन इन फ्यूचर वी कैन revoke the agency contract by revoking agent's authority for future transaction as per section 204. If the nature of agency is such that it should be continued for any period of time, then principal should compensate if the agency is revoked without sufficient cause. नेचर ऑफ एजेंसी की बात हो रही है, समय सीमा फिक्स नहीं है, इट शुड बी कंटिन्यूड फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, समय सीमा फिक्स नहीं है, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन ये एजेंसी कब तक चालू रहेगी इसका कोई डिसीजन अंदर नहीं लिया गया एग्रीमेंट के अंदर। और एक दिन अगर अचानक से आप एजेंसी को बंद करने की बात करेंगे एज अ प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा, आपके उसके पीछे का कोई कारण भी नहीं है, चलिए भाई नुकसान हो रहा है इसलिए आपने एजेंसी बंद कर दी एज अ प्रिंसिपल, चलिए ठीक है वैलिड रीजन है। लेकिन आप कोई वैलिड रीजन दिए बिना अगर एजेंसी बंद कर रहे हैं एज अ प्रिंसिपल, यू आर ट्राइंग टू टर्मिनेट द एजेंसी विदाउट अप्रोप्रिएट रीजन, विदाउट अप्रोप्रिएट ग्राउंड्स, ऑन यू आर नॉट हैविंग एनी रीजंस बिहाइंड दैट, तो वहां पे क्या होगा सर, you have to compensate to the agent. If agent faces or he bears any loss, then it is the duty of to compensate his agent. Agent को अगर कोई नुकसान होता है इस प्री मैच्योर रिवोकेशन से या अचानक रिवोक कर देते हैं, टर्मिनेट कर दें एजेंसी को, तो एजेंट को नुकसान होता है उस सिचुएशन से, यानी उसकी नौकरी चली जाती है तो उसको दूसरी नौकरी तो मिलेगी नहीं, पूरा तो समय लगता है। तो वो सिचुएशन में अगर एजेंट को कोई नुकसान होता है तो वो उसकी भरपाई प्रिंसिपल को करनी पड़ेगी, उसकी ड्यूटी बनती है। उसी की बात आगे आ रही है दूसरी सिचुएशन में 206 सेक्शन में, द प्रिंसिपल मस्ट गिव अ रीजनेबल नोटिस ऑफ रिवोकेशन टू द एजेंट, अदरवाइज प्रिंसिपल हैज अ ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द एजेंट। सफिशिएंट नोटिस दे देनी है, एजेंट को बोल देना भाई आप अब 1 महीने के मेहमान हो हमारे एजेंसी के अंदर, मीन्स ये एजेंसी हम बंद करने वाले हैं, तो आप अपने लिए एक और दूसरी नई नौकरी ढूंढने की आप शुरू करिए, तलाश करिए। 1 महीने का नोटिस दे देते हैं उनको, तो ये नोटिस अगर दे देते हैं तो सेफ हो जाते हैं। अगर आप नोटिस नहीं देते हैं एज अ प्रिंसिपल टू द एजेंट और अचानक से उसको टर्मिनेट कर देते हैं, एजेंसी टर्मिनेट कर देते हैं, एजेंट की नौकरी चली जाती है, तो एजेंट को अगर कोई नुकसान होता है देन प्रिंसिपल हैज द ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द एजेंट एज पर सेक्शन 206। Revocation of agent's authority may be expressed or implied by the conduct of the principal. जो अथॉरिटी है, यहाँ तो एजेंट की जो अथॉरिटी, यहाँ तो आप स्पष्ट बोल दीजिए उसे कि अब आपकी हमारी जो एजेंसी है सर हम इसका अंत ला रहे हैं, नाउ यू आर नॉट
एजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंसी, एक्सप्रेसली उसे बता दीजिए, इम्प्लाइडली उसे बता दीजिए। सो सेक्शन 207 के हिसाब से है वो 208, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बिकम्स इफेक्टिव एज सुन एज द एजेंट और द थर्ड पार्टी कम्स टू नो अबाउट। पता कैसे चलेगा सर कि टर्मिनेशन हो गया है? जैसे ही एजेंट को पता चलता है, उसे पता चलता है, उसको नॉलेज मिलती है कि भाई जो एजेंसी थी जिसके ये प्रिंसिपल थे मिस्टर एक्स, एजेंट को पता चलता है, थर्ड पार्टी को पता चलता है, जैसे ही पता चलता है उसी वक्त एजेंसी का टर्मिनेशन हो चुका है। As soon as you get the idea, you get the information, you get the notice about the termination of agency as per section 208, from that date only it becomes effective that the agency contract is terminated. So that is all about revocation of by principal, revocation now by agent. प्रिंसिपल एजेंसी का अंत ला सकता है, वैसे ही एजेंट भी चाहे तो अपनी अधिकार का त्याग कर सकता है, एजेंसी को त्याग कर सकता है। रिनंसिएशन ऑफ एजेंसी बाय द एजेंट इज पॉसिबल, लेकिन उसके भी रूल्स हैं। अगर प्रिंसिपल एजेंट को नौकरी से निकाल सकता है मींस यानी कि उसे नोटिस दे सकता है कि भाई कल से आने की जरूरत नहीं, तो एजेंट भी अपना इस्तीफा खुद दे सकता है, मींस एजेंट भी इस एजेंसी से चाहे तो निकल सकता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स है वो फॉलो करने होंगे उस हिसाब से। 201 क्या कहता है? सेक्शन 201, एन एजेंसी में ऑल्सो बी टर्मिनेटेड बाय एन एक्सप्रेस रिनंसिएशन बाय द एजेंट आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस टू द प्रिंसिपल। रीजनेबल नोटिस देके मालिक को आप एजेंसी का अंत ला सकते हैं। आप नोटिस में लिखेंगे क्या सर कि मैं एजेंसी का त्याग कर रहा हूं, यानी मैं एजेंसी छोड़ रहा हूं। रिनंसिएशन यानी त्याग करना, छोड़ना। तो इस तरीके से एजेंट भी अगर चाहे तो एजेंसी का अंत ला सकता है, मींस एजेंसी छोड़ सकता है। इस तरीके से भी एजेंसी का टर्मिनेशन हो सकता है बाय रिवोकेशन ऑफ एजेंट थ्रू नोटिस। उसके बाद सेक्शन 205, इफ द एजेंसी इज फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम and if the agent makes a premature renunciation without sufficient cause, then the agent must indemnify the principal for the loss। जैसे प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई सफिशिएंट रीजन के बेसिस पे अगर आप एजेंसी क्लोज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, भाई नुकसान हो रहा है इसलिए एजेंसी का बिजनेस हमने बंद कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट का अंत कर दिया। वैसे ही एजेंट का भी जब वो एजेंसी छोड़ने की बात कर रहा है, त्याग करने की बात कर रहा है, तो उसके पीछे भी कोई उसका सफिशिएंट कारण होना चाहिए, कॉज होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। विदाउट सफिशिएंट रीजन अगर आप एजेंसी छोड़ने की बात करें, भाई बता तो सही क्यों छोड़ रहा है एजेंसी, दिक्कत क्या है, ऐसे पूछना है। ये प्रिंसिपल पूछेगा एजेंट को, एजेंट को जो दिक्कत है वो बतानी चाहिए उसको कि भाई कमीशन कम लग रहा है वगैरह वगैरह, लोड बढ़ जा, ये है वो है, जो भी ओवर टाइम हो जा रहा है। तो जो भी उसकी समस्या है वो समस्या उसको पूछ लेनी चाहिए, अगर हो सकता है पॉसिबल हो तो उसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आपने एजेंसी छोड़ देनी चाहिए इस तरीके से। अगर सफिशिएंट कॉज के बेसिस पे छोड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है और उसकी वजह से अगर कोई प्रिंसिपल को नुकसान होता है, अचानक से आप एजेंसी छोड़ दोगे तो मालिक के लिए दूसरा एजेंट ढूंढना मुश्किल हो सकता है। इस वजह से अगर प्रिंसिपल को अगर कोई लॉस होता है तो कॉम्पेंसेशन देने की बात आती है, एजेंट यहाँ पे कॉम्पेंसेट करेगा टू द प्रिंसिपल। सेक्शन 206 क्या कहता है सर? इफ द एजेंट मेक्स अ डिफॉल्ट इन गिविंग अ रीजनेबल नोटिस ऑफ रिनंसिएशन टू द प्रिंसिपल, देन द एजेंट मस्ट इंडेमनिफाई द प्रिंसिपल फॉर एनी लॉसेस एज पर सेक्शन 206। तो अब यहाँ बात आ रही है रीजनेबल नोटिस देने की। रीजनेबल नोटिस दे देनी है आपने, भाई 1 महीने के बाद मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, आपकी एजेंसी छोड़ रहा हूँ, मालिक जी, प्रिंसिपल जी, आप दूसरा सेवक ढूंढ लीजिएगा, दूसरा एजेंट ढूंढ लीजिएगा। नोटिस देना जरूरी है, नोटिस देंगे तो आप सेफ हो जाएंगे, फ्यूचर की कोई लायबिलिटी आपकी बनती नहीं है। यानी 1 महीने का जो आप नोटिस में समय दे रहे हैं कि 1 महीने बाद मैं एजेंसी का त्याग करने वाला हूँ, तो वो 1 महीने में प्रिंसिपल दूसरा एजेंट ढूंढ लेगा जिससे उसकी जो बिजनेस प्रोसेस है उसमें कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट ना आए। तो उनके लिए, दोनों के लिए ये सिचुएशन फेवरेबल होगा। एजेंट को भी पता होगा कि उसको दूसरी नौकरी ढूंढनी है और प्रिंसिपल को पता है कि अब मुझे नया एजेंट ढूंढना है एजेंसी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, अगर आगे कंटिन्यू करना हो। Renunciation can be expressed or implied in the conduct of
एजेंट। एजेंट भी अपना ये जो त्याग है या तो एक्सप्रेस रेनंसिएशन होगा या तो उसका इम्प्लाइड रेनंसिएशन, दो तरीके से वो का त्याग करता है। सुरेश to sell his plot of land. Suresh employs an agent Mahesh to sell his plot of land. सुरेश कौन है? प्रिंसिपल। यहाँ स्पष्ट लिखा है महेश एजेंट है, एन एजेंट महेश। तो प्रिंसिपल यानी कि सुरेश एक एजेंट की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई हमारा एक जमीन का टुकड़ा है, बेच के दीजिए। लेटर ऑन सुरेश सेल द प्लॉट ऑफ लैंड हिमसेल्फ। लीजिए, जिन्होंने अपॉइंटमेंट की है प्रिंसिपल ने, वो खुद ही जमीन का टुकड़ा बेचने निकल पड़े। प्रिंसिपल ने खुद ही एक्ट कर लिया सर, खुद ही जमीन का टुकड़ा बेच दिया, तो फिर महेश का क्या काम? सो दिस इज एन इम्प्लाइड रिवोकेशन ऑफ, इम्प्लाइड रिवोकेशन का एग्जाम्पल दिया है। दिस इज एन इम्प्लाइड रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की जो बात हो रही है, एक्सप्रेस तो क्या होगा? एक्सप्रेस तो स्पष्ट बोल दिया जाएगा, एजेंट को बोल देगा प्रिंसिपल कल से आने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेसली बोल देंगे। लेकिन इम्प्लाइड कैसे होता है? जो कार्य एजेंट को करना था उसकी जगह पे प्रिंसिपल ने ही कर दिया, तो यहाँ इम्प्लाइडली रिवोकेशन हो गया एजेंट की अथॉरिटी का। अब एजेंट ने वो काम करने की जरूरत नहीं, क्यों? मालिक ने खुद कर दिया है। तो इस तरीके से भी एजेंसी का अंत आ सकता है बाय इम्प्लाइड रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। तो यहाँ पहली सिचुएशन कंप्लीट हुई। पहली सिचुएशन में क्या था सर? बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज देयर आर थ्री सिचुएशंस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। पहला क्या था? बाय एग्रीमेंट। दूसरा क्या था? रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। तीसरा क्या है? रिवोकेशन बाय एजेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरी सिचुएशन आएगी, दूसरा तरीका है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब जो कुछ करेगा कानून करेगा। पहले सिचुएशन में पार्टीज के हिसाब से टर्मिनेशन हो रहा था, दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर रहे थे या इंडिविजुअली डिसाइड कर रहे थे टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अब यहाँ क्या है सर इस सिचुएशन में, इन केस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या सिचुएशन है सर, वो समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। Let's have the second way of termination of agency by operation of law. The relationship of principal and agent may be terminated by operation of law under any of the following circumstances. तो नीचे की अब सिचुएशन है, संभावना है, संजोग है, वो उस संजोगों के हिसाब से, उन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, इसका अंत कैसे आएगा विद द हेल्प ऑफ लॉ। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है? तो नंबर वन, बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर टू, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। नंबर थ्री, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ आइदर पार्टी। नंबर फोर, बाय इंसॉल्वेंसी। नंबर फाइव, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। नंबर सिक्स, बाय डिसॉल्यूशन ऑफ अ कंपनी। Number seven, on principles becoming an aligned enemy. And number eight is by termination of sub-agent's authority. So these are the 8 situations, circumstances, cases under which the relationship of principal and agent may be terminated with the help of operation of law. So let's have discussion of it one by one. Let's have the first point from operation of law, and that is by performance of the contract. By performance of the contract. If the agency is created for a particular purpose only and it is accomplished, or it may be impossible to accomplish such purpose, then in that case the agency gets terminated. The agency is automatically terminated as soon as the business of agency is completed. मान लीजिए एक व्यवहार के लिए आपने एजेंसी की रचना की हो और जैसे ही वो व्यवहार कंप्लीट होता है, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, जैसे ही वो कंप्लीट होता है, अकम्प्लिश होता है, उसी वक्त एजेंसी का अंत आ जाता है। या ऐसा हो जाए कि ये कभी भी फुलफिल नहीं होने वाला है, नहीं लगता है कि ये जो कार्य है वो पॉसिबल है, मीन्स इट्स अकम्प्लिशमेंट बिकम्स टोटली इम्पॉसिबल, ऐसी भी सिचुएशन हो जाए,
तो वहां पे भी हम चाहें तो इस एजेंसी का अंत ला सकते हैं लीगली। अगर इम्पॉसिबल एक्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में ये भी पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश एम्प्लॉयज सुरेश टू सेल इज बाइक, द एजेंसी विल बी टर्मिनेटेड व्हेन द सेल्स इज कंप्लीटेड। सिंपल है, एक ही व्यवहार के लिए प्रिंसिपल ने एजेंट की अपॉइंटमेंट की है। प्रिंसिपल है रमेश, सुरेश यहाँ पे एजेंट है। सुरेश का काम क्या है सर? बाइक बेच के देनी है प्रिंसिपल की, यानी कि रमेश की। जैसे ही ये व्यवहार पूरा होता है सर, तो एजेंसी गेट्स टर्मिनेटेड विद द accomplishment of the particular purpose। नंबर 2 पे चलते हैं, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। टाइम लिमिट की बात आ रही है सर। एजेंसी के अंदर भी टाइम लिमिट होती है। व्हेन एन एजेंट इज अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, द एजेंसी terminates as soon as the time limit expires। टाइम लिमिट अगर स्पेसिफाई कर दिए, प्रिस्क्राइब कर दिए, तो टाइम लिमिट जैसे ही एक्सपायर होता है सर, वहीं पे एजेंसी का अंत आ जाएगा। फिर उसमें हमने कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस है ऐसी, अगर हम चाहें तो इसको एक्सटेंड करना हो तो एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे लाइसेंस होते हैं हमारे, ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए अगर 10 साल का होता है, तो 10 साल जब इसकी एक्सपायरी हो जाए, आफ्टर 10 ईयर्स हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट भी आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हैं। फर्दर, whether the purpose of the agency has been completed or not। आप चाहे तो उसका अंत ला सकते हैं, आप चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। thus the terms of the agency can be extended also। मीन्स अगर आपकी टाइम लिमिट एजेंसी की, भाई हमने एजेंसी 5 साल चलानी है, तो 5 साल की जैसे ही समय सीमा कंप्लीट होती है, यू कैन terminate the agency, or we can say with the help of law, legally with the operation of law, it is automatically terminated। लेकिन आप चाहते हैं कि एजेंसी को हमने कंटिन्यू करना है, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे उसका टाइम लिमिट हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे रिन्यू कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। या फिर हम समझ लें कि हम इसे एक तरीके से नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये खत्म हो गया, ठीक है, नया कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो अगर आपका जो कार्य अधूरा रह गया है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क था, 5 साल हो गए, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो 1 साल या 2 साल का एक्सटेंशन करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन दोनों एग्री होने चाहिए। by death or insanity of either party। by death or insanity of either party। डेथ हमें पता है, इंसैनिटी क्या होता है सर? अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड पर्सन, इंसैनिटी का मतलब। when the principal or the agent dies or becomes of unsound mind, the agency gets terminated as per section 201। सिंपल है, दो में से एक पक्षकार की मृत्यु हो जाए या दो में से एक पक्षकार अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो उसी समय हम कह सकते हैं सर, एजेंसी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज रिवोक्ड, इट इज टर्मिनेटेड। thus when the termination takes place, the agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him as per section 209। मान लीजिए अगर प्रिंसिपल की मृत्यु हो जाए, तो उस सिचुएशन में एजेंट ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जो भी जिम्मेदारी एक रिप्रेजेंटेटिव की होती है, वो सारी जिम्मेदारी एजेंट को निभानी है। उन्होंने क्या करना है? सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं सर, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द हिज लेट प्रिंसिपल। उसके मालिक की जो भी चीजें हैं, जो भी मान लीजिए पार्टी से पेमेंट लेने हैं या दूसरे थर्ड पार्टीज को पेमेंट देने हैं, तो उसके जो भी बेनिफिट्स है, जो भी इंटरेस्ट है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सिक्योरिटी देनी है एक तरीके से। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ये उसकी ड्यूटी बन जाती है, थोड़ा ध्यान रखना है। थे तो सेठ जी उसके, तो सेठ जी को अगर कुछ हो जाता है तो एजेंट ने ध्यान रखना है, क्योंकि एजेंट को पता होता है किससे व्यवहार हुआ था, कितना व्यवहार हुआ था, वगैरह वगैरह। एजेंट वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट इज बाय इंसॉल्वेंसी एज पर सेक्शन 201। The agency is automatically terminated when the principal becomes insolvent, because an insolvent person is disqualified from entering into the contract।
यहाँ प्रिंसिपल की बात हो रही है, एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड एज लीगली बात हो रही है, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाएगा सर कब होगा, प्रिंसिपल बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी प्रिंसिपल हो गए ठन ठन गोपाल, जेब में एक रुपया नहीं है, इंसॉल्वेंसी हो गई है सर, पैसे ही नहीं है, क्या व्यवहार करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर, इंसॉल्वेंट पर्सन हम अच्छे से जानते हैं इज नॉट qualified to enter into a contract, means he is disqualified from, he is considered as incompetent person, incompetent party to enter into a contract. In other words, insolvency of the principal puts an end to the agency, while nothing is mentioned as regard to the insolvency of the agent. यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल हो जाए तो वहीं एजेंसी का अंत हो जाता है, लेकिन अगर एजेंट इंसॉल्वेंट हो जाए तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन ट्रेंड्स एंड कस्टम्स अगर हम देखें तो फिलहाल ये सिचुएशन भी है कि अगर एजेंट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होते हैं तो उस सिचुएशन में भी एजेंसी का अंत लाना हो तो लाया जा सकता है, वहाँ जहाँ पे एजेंसी पर्सनली लायबल, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहाँ एजेंट पर्सनली लायबल होते हैं उस सिचुएशन में उस एजेंसी का भी अंत हम लाना चाहें तो ला सकते हैं लीगली बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट मैटर की चर्चा हो रही है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही ना रहे तो क्या परफॉर्मेंस देंगे एजेंसी के अंदर, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा सर। If the agency is created to deal with a certain subject matter, then it stands terminated when the subject matter is destroyed. When the subject matter is destroyed. जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही ना रहे तो उस जैसे ही उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, when the subject matter gets destroyed or it is damaged, it is no more ultimately, ऐसी चीज रही नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो हम क्या परफॉर्म करेंगे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सुरेश एम्प्लॉयज एन एजेंट रमेश टू सेल हिज Hyundai कार, दैट इज Hyundai i20 कार, यानी कार बेचने की बात हो रही है, यहाँ सुरेश प्रिंसिपल है और रमेश उसका सेवक है यानी कि एजेंट है, और एजेंट से कहा जा रहा है कि भाई मेरी कार बेचनी है, आप बेच के दीजिए। द कार मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड बिकम्स अनसेलेबल, चलिए जो चीज बेचनी थी उसका तो एक्सीडेंट हो गया है, द थिंग इज नो मोर, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी जो चीज थी उसका नाश हो गया है, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, कार तो अब है ही नहीं, कार का एक्सीडेंट हो गया है, और कार जिस सिचुएशन में पहले थी अब उस सिचुएशन में रही नहीं, पहचान में भी नहीं आ रही है क्या थी और क्या हो गई ऐसी सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में जैसे ही ये पर्टिकुलर एक्ट हो गया है, एक एक्सीडेंट हो गया है कार का, द सब्जेक्ट मैटर इज नो मोर, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, द एजेंसी टर्मिनेट्स आफ्टर द एक्सीडेंट ऑफ द कार। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अब रमेश चाहे तो भी वो कार को नहीं बेच सकता है प्रिंसिपल के लिए, तो यहाँ एजेंसी का अंत आ जाता है। इस तरीके से भी एजेंसी का अंत आ सकता है विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट इज डिसॉल्यूशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी डिसॉल्व हो जाए, कंपनी का विसर्जन हो जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या, आसान है, इफ द प्रिंसिपल और द एजेंट इज अ कंपनी एंड द कंपनी इज डिसॉल्व्ड, कभी कभी कंपनी प्रिंसिपल का स्वरूप लेती है तो कभी कभी कंपनी जो होती है एजेंट का स्वरूप लेती है। एजेंट का स्वरूप कैसे लेती है, एजेंट का स्वरूप ऐसे लेती है, एम्प्लॉयज का मान लीजिए इंश्योरेंस करवाया हो कंपनी ने, अपने एम्प्लॉयज का कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया हो, अब उस इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है, और ये प्रीमियम जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, उनके प्रीमियम उनकी सैलरी में से मान लीजिए डिडक्ट किए जा रहे हैं, और ये प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी है जो ये सेवा दे रही है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो डिडक्ट करके जो प्रीमियम पे कर रही है इंश्योरेंस कंपनी को, कंपनी पेज प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी ऑफ हिज एम्प्लॉय, तो यहाँ जो कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी को एक तरीके से सेवा दे रही है एज एन एजेंट,
तो यहाँ जो कंपनी है वो एजेंट के तौर पे काम करने की कोशिश कर रही है। तो कभी कभी जो कंपनी होती है प्रिंसिपल होती है, कभी कभी कंपनी की जो पोस्ट होती है, पोजीशन होती है सर, वो एजेंट की भी हो सकती है। So if the principal or the agent is a company and the company is dissolved, company ना रही हो, तो the agency also automatically comes to an end on such dissolution. कंपनी बंद हो जाएगी तो अब कौन सा इंश्योरेंस और कौन सा प्रीमियम, वैसी बात हो जाएगी। वहां पे एजेंसी का टर्मिनेशन आ जाएगा ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी। ऑन प्रिंसिपल बिकमिंग एन अलाइन एनिमी, प्रिंसिपल जो है वो अगर दुश्मन बन जाए तो, यानी अदर कंट्री का बंदा हो, तो उस सिचुएशन में क्या, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट एंड बोथ आर सिटीजन्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज लॉन्ग एज देयर countries are at peace, but if war breaks out between the two countries, the agency gets terminated. दोनों अदर अदर कंट्रीज के हैं, बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। मान लीजिए प्रिंसिपल जो है वो चाइना के हैं और एजेंट जो है वो भारत के हैं, दोनों अदर कंट्रीज सिटीजन्स हैं, डिफरेंट कंट्री सिटीजन्स हैं। हाँ सर, जब तक शांति है तब तक कॉन्ट्रैक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वैलिड है। लेकिन जैसे ही दोनों कंट्रीज के बीच में अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो वहीं उसी वक्त जैसे ही वॉर डिक्लेयर होता है सर बिटवीन बोथ द कंट्रीज, एजेंसी गेट्स टर्मिनेटेड लीगली। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारे मालिक जी हैं, प्रिंसिपल जो है चाइना के हैं, और चाइना के साथ भारत का अगर युद्ध हो जाता है सर, इस सिचुएशन में क्या होगा, द प्रिंसिपल बिकम्स एन अनायन एनिमी। तो यहाँ जो हमारे मालिक है वो दुश्मन देश के हैं, हमारे एक तरीके से दुश्मन बन जाते हैं इस सिचुएशन में। तो उनके साथ अगर हम कोई व्यवहार कर रहे हैं तो वो व्यवहार सही माना नहीं जाएगा, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड द एजेंसीज gets terminated with the declaration of war between the enemy countries citizen. Then by termination of sub agents authority, सब एजेंट क्या होता है हम आगे समझ चुके हैं इन टाइप्स ऑफ एजेंट। सब एजेंट की अपॉइंटमेंट एजेंट करते हैं, और जैसे ही सब एजेंट की अथॉरिटी की टर्मिनेशन की बात आ रही है सर, क्या हो जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट कैसे होगा सर, जब एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाएगी। आपको अच्छे से याद होगा हमने क्या चर्चा की थी सब एजेंट के अंदर, सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय ओरिजिनल एजेंट, मीन सब एजेंट आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। सब एजेंट से अगर कोई गलती हो जाती है, दे आर ओरिजिनल एजेंट एंड अल्टीमेटली ओरिजिनल एजेंट आर लायबल टू प्रिंसिपल। ये चेन याद रखनी है आपको, तब आप आसानी से आंसर्स लिख पाएंगे। तो अगर मान लीजिए एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट कर दी जाए एज पर सेक्शन 210, एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट कर दी हो तो क्या हो जाएगा सर, सब एजेंट्स अथॉरिटी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। तो अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो भी एजेंसी का अंत आ सकता है, एजेंसी का अंत ऑलरेडी आ चुका है। एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट करेंगे तो अल्टीमेटली एजेंसी का रिवोकेशन हो ही गया है। तो साथ साथ में जो सब एजेंट कोई अथॉरिटी क्रिएट की गई, कोई सब एजेंट को अपॉइंट किया गया, तो अल्टीमेटली देयर अथॉरिटी इज आल्सो ऑटोमेटिकली और वी कैन से लीगली टर्मिनेटेड एज पर एजेंसी।